हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विद द अनदर चैप्टर, दैट इज inspection, query and investigation. So this is the chapter number 4. Now let's start. We will try to complete it as soon as possible. टाइम ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, गिव योर बेस्ट. एंड यस, जितनी आपने स्टडी करी है उस पर अपना कॉन्फिडेंस रखिए. Don't मतलब I can say that even if the ranker, they are not covering the 100% syllabus, but they are covering the, if they are covering 80%, they are very confident about it. So give your best. Doesn't matter आपने 100% करा है, अगर आपने 80% करा है, आपकी उस पे मतलब कमांड, आपकी होल्डिंग कितनी है. So just be confident and revised again and again. Don't try to read on new things at all. Yes, आपने amendments वगैरह सब कर ली होंगी. Now let's start with the another thing, that is the chapter number 4, inspection, inquiry and investigation. Let's start. Section starting with 206 of the Companies Act 2013 and ending with, that is the section number 229, means 229 of the Companies Act 2013. Now let's start with the section number 206. Power to call for the information, inspect books and conduct the inquiries. Means power मतलब रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो कब कब इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है. So this is the summary of that particular section. See students, I say का मटेरियल बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया है. If you want to revise that particular section, you can revise it from that particular summary. So it's a very helpful, and I will recommend especially highly that you should study your entire study, not talking about for a particular this subject. You should study from the study material. Okay, let's start summary part. 206. Power of a registrar to call for the information, explanation and production of the documents under section 206 subsection 1. means रजिस्ट्रार की पावर है, वो कॉल कर सकता है, कॉल मिस मंगवा सकता है इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंपनी ने आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं. means on a scrutiny of any document filed by the company or any information received by him. means यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं. मैंने आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट फाइल करा, एओसी 4 फाइल करा, बट रजिस्ट्रार को कुछ क्वेरी है, मुझसे उन्होंने कॉल करी इन्फॉर्मेशन की एंड एक्सप्लेनेशन की. और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो मुझसे आरओसी ने मांगे थे, मैंने वो सबमिट करे. अब वो उन पे भी रिलाई नहीं कर रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर अ फर्दर इन्फॉर्मेशन. सो देयर इज अ टू केस. He is of the opinion that further information, explanation, that is the second points that I am covering. Okay, explanation relating to the companies. रिटन नोटिस दिया जाएगा कंपनी को टू फर्निश इन राइटिंग सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और टू प्रोड्यूस सच इन डॉक्यूमेंट्स. अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोड्यूस करके आरओसी को देना पड़ेगा. रजिस्ट्रार में सर्व द एडिशनल रिटन नोटिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, they can serve the additional if they are not satisfied with the information produced by the company to the ROC on a call. They can ask for a further documents from the company that you should submit that particular documents within that particular timeline. So company will also submit a further. This is the liability of a company. Okay, students. Now let's start. Registrar may serve additional written notice under section 206 subsection 3. If no information, कब ये फर्दर नोटिस कब सबमिट करा जाएगा? या तो आपने कोई इंफॉर्मेशन सबसेक्शन 1 में मांगी थी, आरओसी ने, आपने वो सबमिट नहीं करी, या फिर जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो आपने सर्व करे बट दे आर इनएडिक्वेट. मींस आरओसी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स. थर्ड केस क्या हो सकता है कि इफ he is satisfied on the scrutiny of documents furnished, unsatisfactory statement of affairs exist in a company and information जो मांगी थी वो एडिक्वेट नहीं है. तो इस केस में भी, इन 3 केस में क्या है, एडिशनल नोटिस सर्व हो सकता है कंपनी को. किन किन केस में? इंफॉर्मेशन मांगी थी, इंफॉर्मेशन नहीं दी, और अगर इंफॉर्मेशन मांगी थी कंपनी को ने सबमिट भी करी बट इट वाज टोटली इनएडिक्वेट एंड हम आवर रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कंपनी. बट एंड थर्ड केस, स्क्रूटनी में, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी में ये पाया गया कि डॉक्यूमेंट्स आर इनएडिक्वेट. तो उस केस में क्या है, ही किसके लिए है?
रजिस्ट्रार के लिए, रजिस्ट्रार में अनदर नोटिस में बाय अनदर नोटिस कॉल ऑन अ कंपनी टू प्रोड्यूस फॉर हिज इंस्पेक्शन फॉर सच फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ही रिक्वायर्ड। ओके, अब आ जाते हैं सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन नंबर 206। स्टूडेंट्स, स्टडी को थोड़ा एंजॉय के साथ, लाइक आप जितना भी एंटरटेनमेंट या फिर अपने आप को खुश रख के पढ़ाई करोगे, यू विल कैप्चर अ लॉट ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग द स्टडी इन लाइक मजबूरी एंड इमोशंस। यू शुड बी लाइक, मतलब अपने शौक के लिए पढ़ाई करिए, ना कि शौक के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। रजिस्ट्रार में कैरी आउट द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 206। अब रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर रहा है, उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो कि मांगी गई थी, उन्होंने फर्निश कर दी, उस इंफॉर्मेशन का इंक्वायरी करेगी ऑन अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिम अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट जो ग्रेवियांसेस हैं इन्वेस्टर्स के आर नॉट बीइंग एड्रेस। मतलब ये चीजें कंपनी को इन बेसिस पे क्या है, इंक्वायरी करेगी। ही में कॉल ऑन अ कंपनी टू writing or explanation on a matter specify and carrying out such inquiry। अब इन बेसिस पर कंपनी पे इंक्वायरी होगी, ठीक। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट is satisfied that circumstances so warrant, it direct the inspection of books and paper of the company by inspector appointed by it for the purpose। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं भी लगा कि कंपनी की इंक्वायरी होनी चाहिए, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन होना चाहिए, दे कैन इमीडिएटली appoint a person who called be the inspector appointed by the central government, and such inspector will inspect the books of accounts of the company। Okay, order passed by the central government having regard to such by journal या फिर special order जो भी central government pass करेगी, and authorized any statutory authority, कोई भी SFIO हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक अथॉरिटी होती है कि जो कि इंस्पेक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन कर ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके अपॉइंट कर सकती है कोई भी अथॉरिटी जो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी टू कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of the company or the class of the company। This was all about the 206, that all the information from the company to check the adequacy of the documents furnished by the company and power of the central government to order for the inspect। So this was all about 206। Now 207 of the Companies Act 2013, conduct of the inspection and inquiry। अब क्या होगी, मतलब अगर उस कंपनी के ऊपर इंक्वायरी हो जाती है, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का ऑर्डर पास करा जाता है या तो रजिस्ट्रार के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब आ जाते हैं क्या ड्यूटी होगी। यहाँ पे ड्यूटी की बात करी गई है। सबसे पहले डायरेक्टर और ऑफिसर और एम्प्लॉय, हर एवरी डायरेक्टर, जहां रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को जरूरत पड़ेगी, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर, डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट जो भी आस्क करे गए हैं, कॉल बाय द इंस्पेक्टर और द जो भी ऑथराइज्ड रजिस्ट्रार है, to produce all such documents, to furnish with such a statement information or explanation in such form as may require, and to render all the assistance in connection with such inspection। means जो भी हमारा इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट फर्निश करेंगे, एंड टू रेंडर ऑल द असिस्टेंस इन कनेक्शन, मतलब फुल्ली कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार के साथ। अब आ जाते हैं पावर ऑफ द रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर। क्या पावर है, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर में इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, कंपनी में आए, कंपनी में आते टाइम, कंपनी में आने के बाद उनके पास क्या क्या पावर है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी कॉपीज जो है उनको कॉपीज कर सकते हैं, और प्लेस और कॉस्ट टू बी प्लेस, उस पर अपने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना के उस प्लेस को वो, मतलब वहां पर अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क बना सकते हैं किसी भी पेपर पर। प्लेस और क्रॉस टू बी प्लेस एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन सच बुक्स इन टोकन ऑफ द टेकन ऑफ द इंस्पेक्शन हैव बीन मेड। मतलब सपोज दैट कोई पर्टिकुलर स्टॉक हैज बीन इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर, they can mark the identification, they have a fully right। Now registrar or inspector
मेकिंग इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कर रहे हैं, एंड shall have all the power as are vested in a civil court under the code of civil procedure 1908, means जो सेम पावर इंस्पेक्टर को होती है इन द कोड ऑफ क्रिमिनल, सॉरी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एज सेम पावर होती है इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, क्या कर सकते हैं? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ढूंढना उनके पास राइट है, एट एनी सच प्लेस एज मे प्रेस्क्राइब, या तो उसके रजिस्ट्रार ऑफिस पर या कोई और भी प्लेस हो, वहां पर जाकर उनके पास फुल्ली राइट है, सम्मन कर सकते हैं किसी को भी, एनफोर्स कर सकते हैं एग्जामिनेशन की, इस पर्सन को यहाँ पे प्रेजेंट होना है, वो एग्जामिनेशन ऑन ओथ करेगा, मतलब शपथ लेगा गीता पर, उस पे कसम लेकर फिर वो अपने स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड करेंगे। ये सारी पावर होती है एज, जो की पावर कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर में होती है ना, एज सेम पावर इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार के पास होती है। इस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट्स और इंस्पेक्शन, मतलब एट एनी प्लेस पे जाके कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर कहीं भी जाके वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। अब आज ये पेनल्टी है, याद कर लेना, नॉट एज सच इम्पोर्टेंट। रिपोर्ट ऑन द इंस्पेक्शन मेड, अब हमारे जो रजिस्ट्रार और जो इंस्पेक्टर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था, उस केस में वो समरी बनाएंगे और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। ये कहाँ लिखा गया है? सेक्शन नंबर 208 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रिपोर्ट ऑन द इंस्पेक्शन मेड, इंस्पेक्शन कर ली, इंस्पेक्टर ने जो जो मटेरियल था उसको नोट डाउन करा, नाउ दे विल मेक अ ऑफिशियल रिपोर्ट एंड सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी अदर पर्सन ऑन द रिकमेंडेशन पर जो भी इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी। आफ्टर द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीजें उसने ऑब्जर्व करी वो सारे स्टेटमेंट्स इसमें रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट का पार्ट। अब गवर्नमेंट क्या है, एक एक्शन लेगी रिपोर्ट के बेसिस पे, कि अगर रिपोर्ट में लिखा है कि नथिंग वाज सीरियस, देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, फाइल विल बी क्लोज्ड एंड इट्स क्लोज। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक एनी फर्दर एक्शन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे विद द रिकमेंडेशन, जो भी हमारी ऑब्जर्व कर गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर के द्वारा, वो सारी रिपोर्ट में वो फीड, मतलब लाइक मतलब रिटर्न करेगा, एंड गवर्नमेंट विल टेक अ सुटेबल एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट। इफ नथिंग सीरियस, देन फाइल विल बी क्लोज्ड। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द सीरियस व्हिच हैज बीन फाइंडिंग आउट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक अ फर्दर प्रोसेस, और उस केस में क्या, या तो वो एसएफआई को सबमिट करेंगे रिपोर्ट, फिर दे विल, मतलब डीप डाउन रिसर्च होगी, मतलब सर्च वगैरह होगा, तो ये सब चीजें फिर गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। अब यहाँ पर अगर हमारे इंस्पेक्टर का काम खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं सर्च एंड सीजर, दैट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 209 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, circumstances for the search, and this is all about the search part। ठीक है, now let's start। देखो, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव during the inspection they are finding that there is a reasonable ground to believe that books और पेपर जो है हमारे relating to the affairs of the companies destroy होने वाले हैं, manipulated होने वाले हैं, altered करने वाले हैं, false होने वाले हैं, या फिर उनको छुपाने वाले हैं, तो they can make an application to the special court, immediately they will make an application to the special court on inspector और registrar, एंड स्पेशल कोर्ट में बाय एन ऑर्डर ऑथराइज करेंगे टू एंटर इनटू अ प्लेस एंड सीज करेंगे इन दैट पर्टिकुलर आफ्टर अलाउइंग देम टू मेक अ कॉपी। मतलब अगर इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार को ये लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको या तो वो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं या म्यूटिलेटेड करने वाले हैं, उनको अल्टर या फॉल्स या फिर उनको मतलब सीक्रेट, मतलब उन्हें छुपाने वाले हैं, तो दे विल मेक एन एप्लीकेशन टू द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट को लगता है कि यस दिस ग्राउंड इज वेरी रीजनेबल, देन दे विल ऑथराइज टू द inspector or registrar that they will enter into a place or premises where the books of accounts are the kept, and they will, matlab they will seize that particular books and the documents after allowing the company to make the xerox, matlab if they want to take any kind of the copy they will take, no issue। ठीक है, सर्च और सीजर मस्ट बी अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होगा? कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। देखो यहाँ पर जो सीज होगा, यहाँ पर सीरियस है, मींस दे आर ट्राइंग टू, they are not cooperating with the government, they are not cooperating with the authorities, means यहाँ पर code of the criminal procedure imply होगा। हमारे जो इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार है उनके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के राइट है सारे, और यहाँ पर जो सीज वाला पार्ट है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। अब
अब जो डॉक्यूमेंट सीज कर लिए स्पेशल कोर्ट ने, तो वो कितने टाइम के लिए रहेंगे? विद इन 180 days दे हैव टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। अगर वो उनको भी वापस रखना चाहती है तो इस रजिस्ट्रार कैन टेक अ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और प्लेस द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द बिफोर रिटर्निंग दैट। मतलब अगर मान लो उनको लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की, हमें इस प्रॉपर्टी की जेरोक्स या कॉपी ले लेनी चाहिए, तो दे विल प्लेस द आइडेंटिफिकेशन मार्क। मतलब वो अपनी कोई भी एक स्पेशल मार्क वहां पर छोड़ सकते हैं उन पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, या फिर कॉपी भी ले सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट दे विल रिटर्न बैक टू दी कंपनी, मीन्स विद इन 180 days। हमारे पास सिर्फ 180 days होते हैं, किसके पास? स्पेशल कोर्ट के पास। अब सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं जिसमें सीज हो सकता है? वेयर अपॉन द इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन, इंस्पेक्टर के पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसके? कंपनी के, या फिर रिलेटिंग टू कंपनी, या की मैनेजर से रिलेटेड, एनी डायरेक्टर, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी आर लाइकली टू डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो ही में आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर फ्रॉम द सेंट्रल स्पेशल कोर्ट फूड एंड दे विल सीज दैट पर्टिकुलर, और मतलब द बुक्स एंड अकाउंट्स। अब पीरियड क्या होगा? 180 days। ठीक है, और ये मैंने ऊपर बताया था आपको, टेक द कॉपीज। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर एक्सटेंशन भी मिल जाता है, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट 180 days एक्सपायर हो गए, अब क्या है, हमें कंपनी को क्या वापस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब इस केस में क्या होगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉल बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर फॉर द फर्दर पीरियड needed again, means they can also give for the further period that is should not be more than 180 days. अब taking the copy, place identification mark, code of criminal procedure, cease से related materially apply होंगे। So this was all about the section number 209। ठीक है, now let's start with the इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मींस कंपनी के जो अफेयर्स हैं अब उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो सेक्शन नंबर 210 में इस चीज से लिखी गई है। अब आ जाते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू ऑर्डर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो इंस्पेक्टर ने सबमिट करी थी, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द कंपनी, इट में ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ अ कंपनी। अब कौन कौन से बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि इस कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कब ऑर्डर पास करेगी? सीओ मोटो लग रहा है कि पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ भी हार्मफुल होने वाला है, तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी, जाओ जाके इस कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो। दूसरा कौन सा? 208 में जो रिपोर्ट सबमिट करी थी इंस्पेक्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां पे लगा कि सीरियस है, तो उस केस में क्या फर्दर प्रोसीड होगी। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आगे इस सेक्शन में ऑर्डर पास करेगी। दो कंडीशन हो गई। तीसरी, ऑन एन इंटीमेशन ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, कंपनी के मेंबर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा कि कंपनी के, और रिजोल्यूशन पास करा और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया कि कंपनी के जो अफेयर्स है उनमें कुछ शेरा फेरी लाइक समथिंग हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट और अफेयर्स को लाइक मतलब इट इज नॉट, मतलब एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है, इस केस में भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इट इज अ मटेरियल ग्राउंड और रीजनेबल ग्राउंड, तो दे विल पास एन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑर्डर बाय द ट्राइब्यूनल, वेयर एन ऑर्डर पास बाय द कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल। अब आ जाते हैं, अगर मान लो ऑर्डर पास करा गया कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल के द्वारा कि जो अफेयर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कंपनी के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर करेगी इन्वेस्टिगेट। मतलब ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे भी वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं, यस यू कैन फर्दर एंड दे आर लायबल, मतलब उनको इंस्पेक्ट करो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन एज एन इंस्पेक्टर जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा प्रॉपरली फंड को। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब जो इंस्पेक्टर अपॉइंट करा गया है उसको क्या पेमेंट करी जाएगी? अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर अपॉइंटिंग द इंस्पेक्टर रिक्वायर द एप्लीकेंट, जो जो एप्लीकेंट थी, चार है यहाँ पर कंपनी के जो मेंबर्स है जिन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा, ये एप्लीकेंट हो गए। इसमें तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इस केस में भी मतलब जो जो एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस केस में एप्लीकेंट टू गिव द सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग द 25,000, मतलब 25,000 से ज्यादा नहीं,
फॉर पेमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज पर द, ये एज अ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी कैसे होगी, वो टर्नओवर ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी पे ये इन्वेस्टिगेशन होने वाला है उसकी टर्नओवर के बेसिस पे वो सिक्योरिटी डिसाइड होगी। सपोज दैट कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है, तो 10,000 रुपए की सिक्योरिटी तो 15,000 की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। और अगर 200 करोड़ से ज्यादा है तो 25,000 तक की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। और रिफंड अगर मान लो इफ इट इज इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट आता है तो ये रिफंड कर दी जाएगी, किसको, एप्लीकेंट को। और इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन अ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आपको याद करना है। अप टू 50 करोड़, मेरे साथ बोलेंगे वहीं बैठे बैठे, अप टू 50 करोड़ 10,000, 50 करोड़ टू 200 करोड़ दैट इज द 15,000, एंड मोर देन 200 करोड़ दैट इज द 25,000। इतनी सिक्योरिटी एप्लीकेंट को डिपॉजिट करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, and now let's start with SFIO, that is the serious fraud investigation office। मतलब एक अपने आप में ये एक जो बॉडी है काफी, मतलब इसको सीरियस माना जाता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी अपने आप में एक अलग प्रोसेस होता है, तो दैट इज फॉलो। अब इसके बारे में ये इसका एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होगा, इसका कौन करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर इसको कोई केस दिया जाए तो ये कैसे हैंडल करेगी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट। फिर यहाँ पे होगा कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, किसके द्वारा, SFIO के द्वारा। फिर यहाँ पे जो भी रेस्पेक्टिव बोर्ड्स बॉडी कॉर्पोरेट होंगी वो किस तरह से इन सब से डील करेंगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट पार्ट, दैट इज द सेक्शन नंबर 211, establishment of the serious fraud investigation office। Setting up of the serious fraud investigation office, central government shall by notification establish करेगी an office to be called the, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी इस मतलब ऑफिस को, जो कि कहा जाएगा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्रॉड रिलेटिंग टू द कंपनी, ठीक है। कंटिन्यूस ऑफ द अर्लियर, जो कि अर्लियर पहले SFIO चल रहे थे, मतलब इससे पहले, तो वो भी डीम्ड मान लिए जाएंगे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब कंपोजिशन क्या होगा इसका, हेड जो होगा इसका हेडेड बाय द डायरेक्टर करा जाएगा, और कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, जिनके पास एबिलिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपर्टीज होगी। बैंकिंग में जिसके पास एक्सपर्टीज होगी वो पर्सन यहाँ पे अपॉइंट होगा, जो कि कहलाया जाएगा एक्सपर्ट। कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में जिसको एक्सपर्टीज होगी, टैक्सेशन के बारे में जिसको एक्सपर्टीज होगी, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के पर्सन अपॉइंट होंगे जिनको कहा जाएगा एक्सपर्ट्स, एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द, मीन्स इससे मिला के हमारी SFIO एक बॉडी बन, मतलब ये पर्सन होते हैं इसके अंदर। अदर फील्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साइबर फॉरेंसिक, इन्वेस्टिगेशन, लॉ, दिस वाज ऑल अबाउट कि ये एक्सपर्ट इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे और ये अपॉइंट होंगे इस कंपनी के अंदर, ठीक है। दिस विल बी, दिस टोटली बी कंसिडर एज अ कंपोजिशन ऑफ SFIO। अब आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर इन SFIO, जो कि हु शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी to the government of India, having the knowledge and expertise in dealing with the matter relating to the corporate affairs। मतलब वो मैटर, मतलब उसके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द मैटर रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। अब आ जाओ अपॉइंटमेंट, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अभी अपॉइंट करे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अब में अपॉइंट करेगी एन एम्प्लॉय इन SFIO एंड कंसिडर एज अ एक्सपर्ट। ये मतलब जो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द, लाइक जैसे डायरेक्टर के लिए ना जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स में डील करता हो। अब आ जाता है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एक्सपर्ट जो है हमारा, एज में भी प्रिस्क्राइब कर जाएगी, रूल नंबर 4 में स्पेसिफाई करा गया है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में कैसे करेगी हमारी SFIO इन्वेस्टिगेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करेगी इट नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट बाय द SFIO। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंसिडर कर रही है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अफेयर्स इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, किसके द्वारा, SFIO के द्वारा। तो ऑर्डर करेगी और असाइन करेगी इस इन्वेस्टिगेशन को, किसको, SFIO को, ठीक है।
ऑन अ रिसीट, या तो जो रिपोर्ट मिली थी वही स्पेशल रिजोल्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स का हो सकता है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से, जीएसटी के डिपार्टमेंट, सेल टैक्स, एक्साइज, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, दे कैन, इफ दे आर रिक्वेस्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हाँ इस कंपनी पे हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इस केस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एसएफआईओ को ये हैंड ओवर दे सकती है कि आप इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करें। 4 केसेस हैं, किन किन केसेस में, जो रिपोर्ट मिली थी, रिजोल्यूशन पास करा गया कंपनी के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट आई है किसी भी डिपार्टमेंट से। अब एसएफआईओ को आ गया, एसएफआईओ क्या है, एसएफआईओ में डेजिग्नेट द इंस्पेक्टर। अब एसएफआईओ खुद अपॉइंट करेगी डेजिग्नेट इंस्पेक्टर। इफ इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है विद द अनदर एजेंसीज आल्सो, तो ये मान लिया जाएगा वो सारी एक रुक जाएंगी, सिर्फ एसएफआईओ की कंटिन्यू होगी। ओके, सारे डॉक्यूमेंट सब एजेंसीज जो ट्रांसफर कर देंगे किसको, एसएफआईओ को। अब एसएफआईओ कंडक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 14 के अकॉर्डिंग एंड सबमिट करेगा रिपोर्ट विद इन सच प्रेस्क्राइब, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है शैल हैव द पावर ऑफ इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 217, हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास पावर है। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा एसएफआईओ का, द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर एम्प्लॉय शैल ऑल द, मतलब कॉर्पोरेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को, और जो भी हमारे ऑफिसर्स होंगे, मे बी रिक्वायर। Offences covered under 447 shall be cognizable and person accused shall not be released on a bail or on a bond except under the certain circumstances। मतलब कुछ कंडीशंस को छोड़ के 447 लगेगा, ना ही वो रिलीज हो सकते बेल पर, ना ही वो बॉन्ड पर रिलीज हो सकते। मींस इट्स अ सीरियस फ्रॉड। अगर उनको एक बार मतलब अरेस्ट कर लिया, दे कैन नॉट बी रिलीज ऑन अ बेल, ना ही बॉन्ड पर रिलीज हो सकते। ठीक है, जो कंसर्न ऑफिसर है एसएफआईओ का, कोई भी पर्सन गिल्टी है उसको अरेस्ट कर सकता है, और उस केस में क्या है, हैज अ रीजन ऑफ बिलीव टू बिलीव एंड इन्फॉर्म हिम द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। ठीक है, अब उसको अरेस्ट भी कर सकता है, ये पावर होती है ऑफिसर एसएफआईओ की। कंसर्न ऑफिसर जो है रजिस्टर करेंगे और कॉपी कर देंगे, सपोज दैट आई एम द ऑफिसर, मान लो मैं कॉर्पोरेट ऑफिस से हूँ, मेरे पास कॉर्पोरेट की अफेयर्स की नॉलेज है, मुझे पता चला ये पर्सन इज गिल्टी है, उसको अरेस्ट कर लिया, फिर उसके जो ग्राउंड्स है, किन ग्राउंड्स पर हमने उसको मतलब अरेस्ट करा है, वो हम एसएफआईओ को फॉरवर्ड कर देंगे। और एवरी पर्सन जो अरेस्टेड है विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उसको मतलब लाया जाएगा। सबमिशन ऑफ द इंटरिम रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू दी सीजी, या तो बीच में कोई रिपोर्ट बनाई हो वो बना के भेज दो, या फिर कोई फाइनल जो रिपोर्ट बनाई हो उसको बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी एसएफआईओ को कि टू इंटीमेट द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। अब उस केस में क्या है, कंपनी की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर एसएफआईओ को करेगी कि आप अपने हिसाब से लीजिए डिसीजन और देखिए कि कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस केस में क्या है, एसएफआईओ कंसिडर करके फाइनल डिसीजन सुनाएगा। अब आ जाते हैं असाइनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और टू द एसएफआईओ बाय द, मतलब दिस इज आई ऑलरेडी, मैंने पूरी समरी पढ़ा दी है, इसमें ये सब ये लिखा गया है नॉन बेलेबल। हाँ बट यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी गई है ना, कि एक्सेप्ट किन किन कंडीशन में उसको बेल मिल सकती है, ये बता देती हूँ कि कंडीशन है ये, या तो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, जिसको हमने अरेस्ट करा है, वुमेन है, या फिर कोई सिक पर्सन है या इन्फर्म है, तो उसको हम बेल पर रिलीज कर सकते हैं अगर स्पेशल कोर्ट को लगे तब। ठीक है, लेकिन इस केस में भी क्या है, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस हो गया हमारा, एक्सेप्ट कंप्लेन राइटिंग होनी चाहिए, डायरेक्टर एसएफआईओ और ये सब। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 212। टिल दैट टाइम स्टूडेंट अपनी स्टडी अच्छे